Hello everyone and welcome to the science class. In today's video we will cover the back exercise of the chapter Getting to Know Plants. So let's start with the first question. Now the first question says correct the following statements and rewrite them. We need to correct it. ठीक है, हमें incorrect statements दिए, we need to correct it और उन्हें जो है दोबारा से लिखना है. First one says stem absorb water and minerals from the soil. See, this statement is incorrect क्योंकि water and mineral soil से कौन absorb करते हैं? Roots, not stem. So the correct statement is roots absorb water and mineral from the soil. Second one, leaves hold the plant upright. This is also incorrect. Stems hold the plant upright. Third one, roots conduct water to the leaves. Means leaves तक जो पानी है वो roots पहुँचाते हैं. Again this is incorrect. Stems conduct the water to the leaves. Stems के through ही जो है water आगे ऊपर travel करता है, या हम कह सकते हैं conduct करता है. Then the D part is the number of petals and stamen in a flower is always equal. So this is again incorrect. Number of petals and sepals equal होते हैं, वो भी हर जगह नहीं. They are usually equal in most of the plants. लेकिन petal और stamen का कोई relation यहाँ पर नहीं होता है. Petals and sepals are usually equal. Then the next part, if the sepals of flower are joined together, its petals are also joined. अब इसमें कह रहे हैं अगर sepals आपस में join होंगे तो petals भी join होंगे. So again it's not necessary. अगर sepals जो हैं flowers के join होते हैं, जो outer covering join होती है, तो जो petals होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? Separated होते हैं, अलग अलग होते हैं पंखुड़ियाँ. Next one, if the petals of flower are joined together, then pistil is joined to the petal. अब वो कह रहे हैं अगर flower के petals आपस में जुड़े हुए हैं तो जो pistil होता है वो भी petal के साथ attach होगा. So again, if the petal of the flower are joined together, the pistil is not necessarily joined to the petal. ऐसा कोई fix नहीं है कि हर flower में same pattern चलेगा कि pistil हमेशा petal के साथ join हो. Now moving on to question number 2. Question number 2 में आपको सिर्फ diagrams बनाने हैं, so that I have made here. Like for the diagram of leaf, this is the simple diagram of leaf. आप इसमें आपको साथ में labeling भी करनी होगी. So leaf के अंदर जो broader part होता है we call it lamina और the leaf blade. Center की जो vein होती है it is called the midrib और the main vein. And जो sides में आपको veins दिखती हैं these are called veins. और जिस पार्ट से वो स्टेम के साथ अटैच होता है इसे हम कहते हैं पेटियोल और स्टॉक. देन द सेकेंड वन इज टैप रूट. तो टैप रूट में क्या होता है? इट हैज़ वन मेन रूट और साइड्स में थोड़े थोड़े से और थिनर रूट्स निकलते हैं, दे आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ टैप रूट. नेक्स्ट वन, डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. तो दिस इज द वेल लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर. ये हमने अच्छे से लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. ठीक है, फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स. Now moving on to question number 3. Can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? Write its name. In which category will you place it? तो अब वो कह रहे हैं आप अपने आसपास कोई ऐसा प्लांट देख सकते हो जो बहुत लॉन्ग हो लेकिन उसकी स्टेम बहुत वीक हो. ठीक है, तो बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं मनी प्लांट सबके घरों में ज़्यादातर होता ही है. तो उसकी स्टेम क्या होती है? बहुत वीक होती है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग भी होता है, उसे हेल्प मिल जाती है तो वो क्लाइंब करता रहता है. तो हम एग्जाम्पल में मनी प्लांट लिख सकते हैं और वो किस कैटेगरी में आएगा? इट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ क्लाइंबर प्लांट. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम? अब स्टेम का क्या फंक्शन होता है? फर्स्ट थिंग, जो भी लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये सब जो चीज़ें हैं वो कहाँ होती हैं? स्टेम्स के साथ ही अटैच होती हैं. सो स्टेम्स बेयर द लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जो रूट्स जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, तो वो लीव्स तक कौन पहुंचाता है? स्टेम्स. स्टेम्स की हेल्प से ही सारा वाटर और जो मिनरल है वो कंडक्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड ऑल्सो टू डिफरेंट अदर पार्ट्स. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ स्टेम. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेज which of the following leaves have reticulate venation? Wheat, tulsi, maize, grass, coriander, चाइना रोज. सो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है? जिस लीफ में जो वेन्स हैं अगर वो पैरेलल ना होकर
ठीक है, नेट की तरह फैली होती हैं, तो उन्हें हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई। सो सी, ये जैसे आप फर्स्ट देख सकते हो वीट की इमेज है, ये इसके कैसी है, पैरेलल वेनेशन है। देन सेकंड आप तुलसी लीफ देख सकते हो, ये कैसी है, रेटिकुलेट, इसमें देखो वेन्स बनी हुई है। मेज़ के केस में भी देखो पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल वेन्स है, क्योंकि ग्रास के केस में भी अगर आप देखोगे तो पैरेलल वेन्स हैं। देन कोरिएंडर में रेटिकुलेट, ठीक है, वेन्स जो है दोनों मेन वेन के दोनों साइड में स्प्रेड आउट है। देन इन केस ऑफ चाइना रोज अगेन वी हैव द रेटिकुलेट वेनेशन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज, इनकी वेनेशन कैसी है, रेटिकुलेट। जबकि बाकी जो थे वीट, मेज, ग्रास, इनमें कैसे थे, लीव्स के अंदर जो वेन्स थी वो पैरेलल थी, तो मीन्स दे हैव द पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डज इट हैव। अब वो कह रहे हैं अगर किसी प्लांट की रूट जो है वो फाइब्रस रूट होती है तो उसकी लीव्स में वेनेशन कैसी होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी फाइब्रस रूट्स होती हैं तो वेनेशन जो होंगी वो पैरेलल होंगी, और अगर टैप रूट होता है तो लीफ की वेनेशन हमेशा रेटिकुलेट होंगी। सो द प्लांट विद फाइब्रस रूट्स विल हैव पैरेलल वेनेशन। जैसे आप सिंपली ग्रास को देख सकते हैं, ग्रास के अगर आप देखोगे कभी निकाल के तो उनकी रूट्स फाइब्रस होती है और उसमें जो वेन्स होंगी वो हमेशा पैरेलल फॉर्म में होंगी। वेयरएज अगर आप किसी ट्री को लो या किसी श्रब को लो, उनमें जो वेन्स होंगे लीव्स में वो रेटिकुलेट वेनेशन में होंगी, लेकिन जो उनकी रूट होगी वो टैप रूट होगी। तो ये रिलेशन होता है रूट एंड लीफ वेनेशन में। तो हमारा 7th क्वेश्चन भी इसी पर ही बेस्ड है। इफ द प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। तो अब अगर वो कह रहे हैं अगर लीफ में वेनेशन रेटिकुलेट है तो रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट होगी उस केस में। सो इफ अ प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन देन इट्स रूट विल बी टैप रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper। तो सेम यही चीज़ जो 6th और 7th क्वेश्चन में हमने देखी। तो बाय लुकिंग एट द लीफ हम बता सकते हैं, सी अगर हम लीफ को डायरेक्टली देखेंगे तो हम बता सकते हैं अगर उसमें पैरेलल वेनेशन हुई तो फाइब्रस रूट होगी, अगर उसमें रेटिकुलेट वेनेशन हुई तो उस केस में रूट कैसी होगी, टैप रूट होगी। लेकिन यहाँ पर वो इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, अगर हमारे पास इम्प्रेशन में हम वेन्स का इम्प्रेशन क्लियरली नहीं ड्रॉ कर पाते तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर हम क्लियरली ड्रॉ कर पाएंगे वेन्स का इम्प्रेशन भी तो हम इजीली बता पाएंगे उनकी किस टाइप की रूट होगी। सो येस, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द टाइप ऑफ रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ लीफ एज इट विल हैव द इम्प्रेशन ऑफ वेन्स which tells us about the type of root. Next one, what are the parts of a flower? So flower के क्या parts होते हैं, petal, sepal, pistil and stamen. Stamen consists of anther and filament, ठीक है, और pistil consists of stigma, style and ovary. So these are the parts of the flower. नेक्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। अब हमें बताना है इनमें से किन के फ्लावर्स होते हैं। ये हमें एक लिस्ट दे रखी है। सो ऑल ऑफ दीज हैव फ्लावर्स, इन सबके ही फ्लावर्स होंगे। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड एंड नेम द प्रोसेस। सो लीव्स प्रोड्यूस द फूड, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। लीव्स प्रोड्यूस द फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 12th क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर विल यू फाइंड द ओवरी। तो हमने डायग्राम किया था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर किया था, तो देयर वी कैन फाइंड कि जो सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल, वहाँ पे हमारे पास एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड ओवरी। 13th question, name two plants in which one has joint sepals and the other has separate sepals. So see, datura and rose we can take। यहाँ पे देखो दतूरा केस में जो ये सेपल्स हैं ये कैसे है, जॉइन है, पूरे आपस में जॉइंड है, ये जो ग्रीन कलर की कवरिंग है। वेयरएज इन केस ऑफ रोज में ये जो सेपल्स है ग्रीन वाले देखो, दीज ऑल आर सेपरेटेड वंस। सो दतूरा हैज़ जॉइंट सेपल एंड रोज हैज़ द सेपरेटेड सेपल्स।
So with this we come to the end of the chapter along with the back exercise. We'll meet in the next video with a new chapter.